Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Karkan Education. Today I am going to discuss of Mechanical Engineering Objective Series for RRB JEE, SSC JEE, BPSC Assistant Engineer, BPSC Assistant Professor and Lecturer in the subject of Strength of Material, Practice Set 7. So, question number 1. The polar moment of inertia of a hollow shaft of outer diameter capital D and inner diameter is a smaller d, and that is polar moment of inertia, that is IP, is given as pi by 32 into capital D out to the power 4 minus a smaller diameter to the power 4. Which of the following is correct torsion equation? So T equal to T upon IP equal to tau upon R into G into theta, that is torsion equation. The torque transmitted by a solid shaft of diameter D is, so T equal to pi by 16 into tau dq. T equal to then two solid shafts A and B are made of the same material. The shaft A is 50 mm diameter and shaft B is 100 mm diameter. The strength of B is dash dash is that of. That means for two shafts of same material, that means their strength is directly proportional to the polar moment of inertia. Their strength is directly proportional to the polar moment of inertia. So here polar moment of inertia, that means Zp is equal to, for solid circular shaft, is given as pi upon 16 d cube. Okay, so here Zp is directly proportional to what? Zp is directly proportional to d cube. So Zp A upon Zp of B क्या हो जाएगी? डी ए डायमीटर ऑफ शाफ्ट ए अपॉन डायमीटर ऑफ शाफ्ट बी का होल क्यूब. तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट क्या है हमारा? दैट इज 50 mm एंड डायमीटर ऑफ शाफ्ट बी इज 100 mm का होल क्यूब, दैट इज 1/2 का होल क्यूब इक्वल टू 1/8. दैट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट A is equal to 8 times of polar moment of shaft of what? B. And here already given as a strength, that is T is directly proportional to Zp. That means here what is given as 1/8 times, because here the strength of B, क्योंकि B के बारे में पूछ रहा है, that means Zp of B is equal to Zp of A divided by 8. That is what? Here given as 8 times. Okay. Zp is what? Given as Zp B is what? 8 times. Then question number 5. In torsion equation, T upon Ip or either J, tau equal to Rg, theta upon J upon R is called, that is polar modulus. That is what called? Polar modulus, G upon R. The polar modulus of a solid circular shaft is what? तो polar modulus आपका क्या होता है? That is polar modulus is Zp is equal to Ip, polar moment of inertia, upon what? R. R is what? That is distance upon length, that is Ip upon d by 2, and Ip is given as pi into d to the power 4 upon 32 sorry into d by 2. That Zp is equal to what? Pi into d cube upon what? 16. So here
Option B is correct. Then polar modulus of the hollow shaft of the outer diameter d and inner diameter is a smaller d. तो that is pi by 16 हो जाएगी and pi by 16 upon what? That is d by 4. तो this one is correct. Option C is correct. क्योंकि we have to calculate as what? यहाँ पे आप यदि हम बात करेंगे ZP है ना, ZP is hollow shaft, तो IP क्या होता है? That is pi upon 32 into d to the power 4 minus a smaller d to the power 4 divided by what? D by 2. So that is C. Then torque transmitted by a hollow shaft of outer diameter d and inner diameter is a smaller d, that is called C. Tau upon 5 upon 16 into tau into d to the power 4. This one. Then question number 9. 9 is a shaft revolving at a shaft revolving at omega speed. Here omega radian per second transmitted to torque Newton meter. The power is developed as, that is T into omega watt. P equal to क्या होता है? T into omega. The shaft of diameter A is twice of diameter B and both are the same material. Assuming both shafts to rotate at same speed, the maximum power transmitted by B, what? The maximum power transmitted by B पूछ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे P इक्वल टू क्या होता है? T इंटू ओमेगा. यहां से आप कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा P इंटू T इंटू ओमेगा एंड T इक्वल टू क्या है? दैट इज पाई बाई 16 इंटू टाउ इंटू d cube into omega. And in this problem already given as omega same है, shear stress same है, that means P is directly proportional to d cube. So here PA upon PB, power transmitted by shaft A upon power transmitted by shaft B is, that is diameter of A shaft A upon diameter of shaft B का whole cube. तो here diameter of shaft A is twice of diameter B. That means क्या हो रहा है यहाँ पे? That is 2dB according to question. Here given as dB का whole cube, that is 8 times. That means यहाँ पे आपको जो निकल के आ रही है कि PA power transmitted by shaft A is what? 8 times of power transmitted by B. बट क्वेश्चन में पूछा गया कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय B क्या होगी, तो दैट इज PB इक्वल टू क्या हो जाएगी? PA अपॉन 8, दैट इज 1/8 ऑफ A. ऑप्शन C इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शाफ्ट A and B, two shaft that is A and B of the same power same है. The speed of A is 250 rpm and shaft B is 300 rpm. The shaft B has greater diameter. It is correct or not? तो अब इसे कैसे चेक करेंगे? तो हमने अभी क्या है जस्ट पढ़ा है फॉर्मूला में क्या कि आपको P इक्वल टू क्या होती है, आप यहां से P इक्वल टू 2 पाई n T अपॉन 60 वाट. ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगी एंड T इक्वल टू यहां पे लिखेंगे 2 पाई n. T इक्वल टू क्या हो जाएगी? पाई अपॉन 16 है ना, पाई अपॉन 16 इंटू टाउ इंटू डी क्यूब अपॉन 60. दैट मीन्स P क्या है, आपको सेम पावर है, तो सेम पावर है तो यहां पे n इंटू डी का होल क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट. तो यहां पे NA इंटू DA का होल क्यूब इक्वल टू NB इंटू DB का होल क्यूब. तो यार NA इज व्हाट? दैट इज
250 RPM and DA का होल क्यूब इक्वल टू 300 DB का होल क्यूब, है ना। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप जब करेंगे DA अपॉन DB का होल क्यूब इक्वल टू 300 upon 250 and that value is 1.2. That means here DA upon DB ये जो आ जाएगी approximately 1.05. That means DA is 1.05 times of DB. तो ये क्या हो रहा है, DA जो है diameter of A is greater than diameter of B 1.05 times. बट यहां पे बोल रहा है क्वेश्चन में द शाफ्ट बी हैज ग्रेटर डायमीटर. नो, दैट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी इज सही. देन क्वेश्चन 12. टू शाफ्ट ए एंड बी हैव सेम मटेरियल. द शाफ्ट ए इज सॉलिड ऑफ डायमीटर 100 mm and shaft B is hollow. Its outer diameter 100 mm and inner diameter is 50 mm. The torque transmitted by shaft B A to B is. तो आपका क्या हो जाएगा कि देखिए टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट A है ना इक्वल टू पाई बाई 16 इनटू टॉर्क ट्रांसमिटेड सॉरी TA पाई टॉ इनटू D क्यूब दैट इज 100 का होल क्यूब एंड टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट B दैट इज हॉलो शाफ्ट दैट इज पाई अपॉन 16 इनटू टॉ इनटू D टू द पावर 4 है ना. तो यहां पे क्या हो जाएगी 100 आउटर डायमीटर टू द पावर 4 माइनस 50 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय व्हाट 100. ओके, तो इसे हम जब करेक्ट करेंगे और इसे हमारा पूछा क्या गया टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय बी, तो इसे हम लिख सकते हैं कि TB अपॉन TA, TB अपॉन TA. तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा 100 अपॉन 100 टू द पावर 4 माइनस 50 टू द पावर 4. तो ये जो वैल्यू आपको आ जाएगी इसको आप करेक्ट कीजिएगा तो 100 अपॉन यहां से 100 को क्या करेंगे ये 100 टू द पावर 100 क्यूब थी तो ये 100 टू द पावर 4 हो जाएगी. तो ये 100 टू द पावर 4 100 टू द पावर 4 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 50 अपॉन 100 टू द पावर 4 ये कैंसिल आउट. दैट मीन्स यहां से आप बात करेंगे तो TB इक्वल टू TA इज इक्वल टू 1 अपॉन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी 16 अपॉन 15 इक्वल टू 15 बाय 16. तो पूछ रहा है कि TB बाय TA दैट इज 15 बाय 16. The strength of shaft is judged by torque transmitted by shaft S. कितना टॉर्क ट्रांसफर होगा उसी से हम जज करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट क्या है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन टू शाफ्ट A and B are same material. The shaft diameter A is solid and B is D. The shaft B is hollow and outer diameter D and inner diameter is D by 2. The strength of hollow in है ना strength of hollow in torsion is what है ना. तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि आपका इन टॉर्सन की बात कर रहे हैं. तो अभी देखिए आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में हम फर्स्ट पार्ट क्या है TA दैट इज पाई अपॉन 16 इंटू टाउ इंटू DQ दैट इज कैपिटल DQ. Then torque transmitted by B that is hollow shaft is given as pi by 16 into tau. ये क्या हो जाएगी that is D to the power 4 माइनस ये जो आपका क्या है D by 2 to the power 4 अपॉन कैपिटल D. तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपको क्या आ जाएगी पाई अपॉन 16 इंटू टाउ इंटू ये जो आपको बच के आ रही है क्या आ रही है दैट इज 15 अपॉन 16 इंटू D क्यूब.
और ये यदि आप देखेंगे तो आपको क्या है, दैट इज टी ए है ना, टी ए है, तो उस केस में आपको क्या आ जाएगी, टी बी इक्वल टू 15/16 इंटू टी ए, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको फिर से क्या पूछा गया है कि आपका टू शाफ्ट आर सेम मटेरियल, द शाफ्ट ए बी ए हैज डायमीटर कैपिटल डी एंड बी इज डाई बाई 2. दैट मीन्स यहाँ पे ओनली 2 जो है सॉलिड शाफ्ट है, तो दो जब सॉलिड शाफ्ट है तो आपका टी ए इक्वल टू पाई अपॉन 16 इंटू टाउ इंटू डी क्यू एंड टी बी इज गिवन एज पाई अपॉन 16 इंटू टाउ एट डी बाई 2, दैट मीन्स डी क्यू अपॉन 8. इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दैट इज टी बी इक्वल टू टी ए अपॉन 8. तो पूछ रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ बी इज शाफ्ट ए एज, तो क्या है 1/8 टाइम्स है ना, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन टू शाफ्ट ऑफ सेम लेंथ, one is hollow, transmitted equal torque and maximum equal stress, they should have, है ना, they should have what equal, that means polar modulus, है ना, polar modulus जब equal होगा तभी हमारा उस केस में क्या होगा, torque transmitted, क्योंकि torque transmitted for two equal same material same length, that means torque transmitted by shaft is directly proportional to polar modulus होता है ना. Then question number 17, for two shaft है ना, for two shaft connected in parallel and subjected to twisting moment, the angle of twist of these two shaft will be, है ना, जब हमारा पैरेलल में कनेक्ट होगा तो हमारा सेम होगा, है ना, यदि पैरेलल में होगा तो सेम होगा एंगल ऑफ ट्विस्ट, यदि सीरीज में होगा तो टॉर्क सेम होगा एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट अलग अलग होगी. देन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ए सर्कुलर शाफ्ट फिक्स एट वन एंड ए एज डायमीटर कैपिटल डी फॉर हाफ ऑफ इट्स लेंथ, आधा जो है L/2 कैपिटल डी डायमीटर है और आधा जो है D/2 एज शोन इन फिगर. इफ द रोटेशन ऑफ B इज रिलेटिव टू A इज 0.1 रेडियन, द रोटेशन ऑफ C to B जो है वाट क्या होगी. तो इसमें आपको क्या है, दैट मीन्स आपका रोटेशन टॉर्सनल फॉर्मूला से आप बात करेंगे तो रोटेशन थीटा इक्वल टू जो आपको निकल के आएगी दैट इज 32 इंटू टी इंटू एल अपॉन, है ना, टी इंटू एल जी इंटू पाई इंटू डी टू द पावर 4. ये फॉर्मूला आपको निकल के आएगी. तो इस केस में, है ना, इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि आपको सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हम जो है जी निकालेंगे. तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी इक्वल टू आपको जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, आपको जी इक्वल टू जब हम बात करेंगे तो 32 टी एल डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी टू पावर 4 इंटू आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना गिवन है, दैट इज 0.1 रेडियन. तो अब जब हम बात करेंगे कि थीटा बी सी, ये क्या है, थीटा सी ये था, अब थीटा बी सी, है ना, थीटा बी सी की जब हम बात करेंगे तो उस केस में आप देखिए हम इसको इंसर्ट करते हैं कि 32 टी एल अपॉन पाई इंटू डी टू द पावर 4 इंटू जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 32 टी एल अपॉन पाई, तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगी पाई इंटू डी टू द पावर 4 इंटू 0.01. लेकिन अभी इस केस में क्या बोल रहा है कि आपका यहां पे डायमीटर क्या है, दैट इज D/2 है. तो पहले हम D/2 है, तो इस केस में यहां पे आपको क्या था, कैपिटल D डायमीटर था, तो ये क्या हो जाएगा D/2, दैट मीन्स यहां पे 16 से क्या हो जाएगी, है ना,
d/2, तो यहां पे स्मॉलर के लिए क्या हो जाएगी, दैट इज हाफ से मल्टीप्लाई, तो d/2 दैट इज 2⁴ दैट इज 16, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा 6, यहां पे जो हमें निकल के आएगी हाँ, तो यहां पे 1.6 है ना, थीटा भी जो है 1.6 रेडियन, इसे आप करेंगे तो दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस, जब हमारा शियर स्ट्रेस सब्जेक्टेड है तो उस केस में हमारा टाउ स्क्वायर अपॉन 2g इंटू वॉल्यूम, टाउ स्क्वायर अपॉन 2g इंटू क्या हो जाएगी वॉल्यूम। यदि वही हमारा टॉर्सन रहेगी तो डेट मीन्स आपका उस केस में क्या आ जाएगी टाउ स्क्वायर 4g, है ना, टाउ स्क्वायर 4g। यदि इस केस में क्या है टॉर्सन की बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए हॉलो सर्कुलर शाफ्ट of outer diameter d and a smaller diameter a small d और inner diameter subjected to shear stress is, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा दैट इज कैपिटल डी, है ना, आपका यहां से दैट इज ऑप्शन डी, टाउ स्क्वायर अपॉन 4g इंटू कैपिटल डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द शाफ्ट। Okay. Then question 21. When a shaft is subjected to diameter d to a twisting moment t and bending moment m, the equivalent bending moment is, तो bending equivalent bending moment क्या होता है हाफ इंटू m प्लस रूट अंडर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी। देन ट्विस्टिंग मोमेंट सिमिलर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगी दैट इज रूट अंडर m स्क्वायर प्लस t square. Then corresponding, when a shaft subjected to d, diameter d is subjected to twisting moment t and bending moment m, the maximum normal stress is, तो maximum normal stress क्या होगा that is sigma b is equal to 32 me upon pi dq and that is equivalent bending moment। तो equivalent bending moment हमारा क्या होता है half m plus this one, तो इसको हम रखेंगे 32 अपॉन पाई डी क्यूब इंटू हाफ इंटू एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो यहां से ये क्या हो जाएगी 16, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन 24, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ट्विस्टिंग मोमेंट, है ना, तो ये क्या हो जाएगी 16t अपॉन पाई डी क्यूब अपॉन इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, दैट इज इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है दैट इज एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, है ना। देन 25, क्वेश्चन नंबर 25, ए शाफ्ट डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट एम, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, देन एम इज इक्वल टू, है ना, तो यहां पे क्या है दैट इज सिग्मा बी इज इक्वल टू 32m अपॉन पाई डी क्यू एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यू एंड बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या है दैट इज 32m अपॉन पाई डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी दैट इज 16t अपॉन पाई डी क्यू, दैट इज कैंसिल आउट, दैट इज व्हाट 2, तो एक बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू m इक्वल टू व्हाट t/2, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 26, इन ए स्प्रिंग बैलेंस द स्प्रिंग इज यूज्ड टू मेजर फोर्सेस, स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग का काम क्या होता है फोर्स को मेजर करना। इन वॉचेज द स्प्रिंग इज यूज्ड टू ऑब्जर्व शॉक एंड वाइब्रेशन, नो, हम जब भी स्प्रिंग में यूज करते हैं तो एनर्जी को स्टोर करके रिलीज करने के लिए, दैट इज इनकरेक्ट, शॉक एंड वाइब्रेशन को ऑब्जर्व नहीं करता है।
in a spring in a car are used to store a strain energy. आपका क्या इसमें strain energy स्टोर करता है? नहीं, गलत. A spring in a bike and clutch are used to what? Apply the forces. क्योंकि हम स्प्रिंग किस लिए करते हैं क्लच और में? Apply the forces, है ना? Then a spring when loaded is permanently distorted and recover its original shape when load is removed. Yes, जब हम स्प्रिंग को लोड रिमूव करेंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी ड्यू टू इट्स स्टिफनेस प्रॉपर्टी. In a watch, the spring is used to strain energy. The energy released what? To run the watches. क्योंकि हम जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो उससे हमें क्या होता है? वॉच रन होता है. That means घड़ी चलती है. A spring to use observe the shock and vibration, है ना? शॉक एंड वाइब्रेशन. कौन सा स्प्रिंग हम यूज करते हैं जिससे हमारा शॉक एंड वाइब्रेशन ऑब्जर्व हो? तो इसमें हमारा क्या होता है? लीफ स्प्रिंग. अब लीफ स्प्रिंग कहां पे? तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे ट्रक के एक्सल पे, जितने भी 4 व्हीलर जो है हैवी लोडेड व्हीकल, तो वहां पे हम लीफ स्प्रिंग यूज करते हैं. द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग स्टिफनेस. यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए स्प्रिंग स्टिफनेस. When a closely coiled helical spring is subjected to axial load, it's said to be under, है ना? यदि हमारा एक्सियल लोड उसमें लग रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? That is called torsion. When a closely coiled helical spring main diameter is D subjected to axial load W, then deflection is, तो डेल्टा D, है ना? तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाता है? स्प्रिंग डिफ्लेक्शन 8 इंटू डब्ल्यू इंटू डी क्यू अपॉन 8 इंटू जी इंटू डी टू पावर 4. जी और आइदर सी, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. देन क्वेश्चन नंबर 35. व्हेन ए क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग of mean diameter D is subjected to axial load, then spring stiffness is what? तो G into D to power 4, है ना, अपॉन 8 डी क्यू इंटू एल. तो ये क्या हो जाएगा? स्प्रिंग स्टिफनेस पूछ रहा है. दैट इज के क्या हो जाएगी? डब्ल्यू अपॉन डेल्टा, है ना? यहां से सॉरी डब्ल्यू अपॉन डेल्टा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो के इक्वल डेल्टा. तो यहां से हम क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगी, तो यहां से डब्ल्यू कट जाएगी, तो यहां से डब्ल्यू अपॉन डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? 8 इंटू डब्ल्यू डी क्यूब एन इंटू जी इंटू डी टू पावर 4. यहां से डब्ल्यू डब्ल्यू कट गई तो जी इंटू डी टू पावर 4 अपॉन 8 डी क्यू एन. दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. ए क्लोजली coiled helical spring of mean coil diameter is R and coil diameter is a small d is acted upon a direct compression load W. The maximum shear stress developed is, that is 16 WR upon pi d Q. If total length of wire in a spring is fixed and mean radius of helical spring is double, है ना? Mean radius of the helical spring is double, then spring stiffness will be. तो spring stiffness का फॉर्मूला क्या है आपका? K इक्वल टू G इंटू डी टू द पावर 4 अपॉन 8 इंटू डी क्यूब अपॉन n. And capital D is mean coil diameter and smaller d is wire diameter. यहाँ पे क्या हो रहा है कि mean radius of the helical spring is double, तो इसको mean radius, है ना, radius, तो R इक्वल टू क्या होता है? D by 2. दैट मीन्स R इक्वल टू D by 2. और मेन रेडियस को ही क्या, रेडियस को डबल किया गया है. जब हम रेडियस को डबल करेंगे तो उस केस में, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेडियस के टर्म में G इंटू डी टू द पावर 4 अपॉन 8 64, है ना, दैट इज 64 R क्यूब इंटू n. तो अब देखो क्या है, रेडियस को डबल किया, दैट मीन्स 8 टाइम्स, दैट मीन्स 1 अपॉन 8, तो 1/8 से घट जाएगी. क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. वॉल करेक्शन फैक्टर इन ए हेलिकल स्प्रिंग इज गिवन एज, तो ये क्या होता है आपका 4s - 1 अपॉन 4s - 4 प्लस
0.015 upon S. Then question number 40. Two closely coiled helical spring A and B of same material, same number of turn, made of same wire and subjected to axial load W. The mean diameter of a spring A is double that mean diameter of a spring B. Then ratio of deflection is, है ना. इसमें अभी क्या पूछा गया, दैट इज डिफ्लेक्शन. तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, डेल्टा, है ना, डेल्टा इक्वल टू 8W डी क्यूब अपॉन n इंटू जी इंटू डी टू द पावर 4. तो इस केस में अभी देखिए हमारा क्या बोला गया है कि डेल्टा ए जो हो जाएगा 8 इंटू डब्ल्यू. अब कैपिटल डी ए इज डबल दैट मीन बी, तो क्या है 8 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, जो भी बी का डायमीटर होगा n अपॉन जी इंटू डी टू द पावर 4. तो यहां पे क्या हो जाएगी, दैट इज 8 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी, है ना. लेकिन पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन बी टू ए, तो डेल्टा बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, डेल्टा ए अपॉन 8, दैट मीन्स 1/8 टाइम्स, है ना. इन एवर क्वेश्चन द रेशियो ऑफ स्प्रिंग स्टिफनेस बी टू स्प्रिंग स्टिफनेस ए, है ना. अब यहां पे क्या है, स्प्रिंग स्टिफनेस की बात कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. यदि आप इसको सोल्व करना ही चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगी, k इक्वल टू जी इंटू डी टू द पावर 4 अपॉन 8 डी क्यूब n. तो यहां से क्या है, आप k a इक्वल टू जी इंटू डी टू द पावर 4 अपॉन 8 64, है ना, दैट इज 64 डी क्यूब अपॉन n एंड के बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, जी इंटू डी टू द पावर 4 अपॉन 8 डी क्यूब n. तो यहां से के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपको 8 टाइम्स, है ना, ऑफ के ए. देन 42, a closely coiled helical spring of mean diameter d and a spring wire diameter is d. The spring index, है ना, that is the spring index c is कैपिटल डी बाई क्या होता है, स्मॉल डी, एंड कैपिटल डी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो कैपिटल डी जो होता है आपका मीन कॉइल डायमीटर एंड स्मॉलर डी इज वायर डायमीटर, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन टू क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग ए एंड बी आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट बट नंबर ऑफ टर्न, है ना. अब यहाँ पे बात आती है नंबर ऑफ टर्न इज A is half of the B. The ratio of deflection A to B is what? तो यहां पे क्या होता है, आपका डिफ्लेक्शन के टर्म में हम बात करेंगे तो डेल्टा अपॉन डेल्टा B इक्वल टू क्या हो जाएगी, एन ए अपॉन एन बी, क्योंकि आपको क्या होता है फॉर्मूला यदि देखेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू 8W डी क्यू एन, है ना, 8W डी क्यूब एन अपॉन जी इंटू डी टू द पावर 4, दैट इज डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. तो n क्या है, हाफ ऑफ एन बी है, तो एन बी अपॉन ट्वाइस ऑफ एन बी, ये कैंसिल, दैट इज हाफ. The stiffness of a closely coiled helical spring is directly proportional to the number of turn. नहीं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में होगा, डिफ्लेक्शन में. अब यहां बोल रहा है स्टिफनेस की बात, तो स्टिफनेस में क्या हो जाएगी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न. टू क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग ए एंड बी आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट बट बाय डायमीटर ए इज डबल दैट बी, द स्प्रिंग स्टिफनेस बी इज दैट, है ना. तो इसमें अभी हमने क्या पढ़ा कि आपका क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/4, है ना, 16 टाइम्स. अब इसको यदि हम सोल्व करना चाहें तो ये क्या हो जाएगी, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी हमारा किसके बात कर रहा है, बट डायमीटर ऑफ वायर का, तो डायमीटर ऑफ वायर टू द पावर 4. तो यहां पे क्या हो जाएगी, के ए अपॉन के बी इक्वल टू डी ए अपॉन
dB का 4, तो ये A इज B है ना, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस dA अपॉन dB है ना, dB टू द पावर 4 दैट इज 16। तो यहां पे पूछ रहा है कि KB इज इक्वल टू K अपॉन 16 दैट इज 1/16। Two closely coiled helical spring A and B are equal in all respect, but number of turn A is double at B. The spring stiffness A will be that of, है ना। अब पूछ रहा है कि A से B के बीच में अभी क्या है, मीन कॉइल डायमीटर। अब हमारा किसका बात कर रहे हैं तो इसमें स्टिफनेस कैसे वैरी करेगी, तो आपका क्या हो जाएगा के ए इंटू एन ए इक्वल टू के बी इंटू एन बी। तो आपका क्या बोल रहा है, ए इज डबल ऑफ बी है ना, तो के ए इंटू ट्वाइस ऑफ एन बी इक्वल टू के बी इंटू एन बी। कैंसिल कैंसिल, तो पूछ रहा है ए क्या होगा, तो के ए इक्वल टू के बी बाई 2 दैट इज 1/2 है ना, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। A closely coiled helical spring K is cut into 2 halves है ना, 2 पार्ट में the deflection of each spring will be, तो क्या था K is directly proportional to 1 upon n, आधा में कट किया दैट मीन्स क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 48 and question number 49 are confusing question, and इसमें क्या है बहुत आर्गुमेंट्स है कि आपको किस तरह से, जैसे आपको 2 कंपोजिट शाफ्ट consisting of 2 steps having a ring stiffness K1 and K2 held 2 rigid support at the end, the spring stiffness will be। अब इस केस में हमारा क्या होगा कि आपको 2 शाफ्ट है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल शाफ्ट कंसीडर करेंगे और 2 स्टेप शाफ्ट, दैट मीन्स आपका ये क्या है एक साथ है। तो इस केस में यदि एक साथ है तो इसको हम यदि सीरीज में हम कंसीडर कर रहे हैं तो आपका क्या होगा 1/k इक्विवेलेंट प्लस 1/k इक्विवेलेंट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी होगा। बट आपका कमेंट में आप जरूर क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में आपका राय क्या है वो आप जरूर करें, बट अकॉर्डिंग टू बुक जो आपका आर एस खुरमी का बुक है उसके अकॉर्डिंग आंसर भी आपका सी दिया है, लेकिन इसमें मोस्ट कंफ्यूजन है क्योंकि K1 प्लस K2, तो आप इसमें जरूर अपना राय दें कि आपके अकॉर्डिंग क्या होगी। इसमें क्या है आप कंसीडर कर रहे हैं कि आपका सीरीज में है और इधर पैरेलल में है। देन क्वेश्चन नंबर 49 यदि ऑब्वियसली आपका वो सी है तो क्वेश्चन नंबर 49 जो होगी आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 ऑलरेडी क्या है K1 प्लस K2 होगी, लेकिन ये भी आपका ऑप्शन सी दिया है, तो आप इसको एक बार जरूर विजिट करें और आपके बारे क्या कमेंट है इसको जरूर आप कमेंट में जरूर बताएं। एक क्लोजली क्वाइल ये हम आपके लिए छोड़ दिए हैं 2 क्वेश्चन, जिसको कि हम नेक्स्ट लास्ट जब फाइनल डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम करेंगे। A closely coiled helical spring of a stiffness K is cut into n equal parts. The stiffness of each part is, तो ये क्या हो जाएगी दैट इज n k है ना, जितना नंबर ऑफ पार्ट्स रहेगा तो यदि 2 हाफ कर रहे हैं 2 हाफ पार्ट्स में तो 2k है ना, 3 इक्वल पार्ट्स 3k। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 50 हमने डिस्कस किए। यदि आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन है, कहीं भी आपको डाउट है तो कमेंट में आप जरूर कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा है आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।